नाज़रीन आदाब, न्यूज अपडेट एट 4 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। अहम खबरों के साथ आप सबसे मुखातिब हो रही हूं मैं हिना जुबैर, और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे आज की सबसे अच्छी खबर के साथ। जी हां, सूरज के राज का पता लगाने के लिए भारत के पहले PSLV C57 आदित्य L1 सैटेलाइट को बिलाखिर लॉन्च कर दिया गया। 11:50 पर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। आदित्य L1 सैटेलाइट जो सूरज का मुताला करने के लिए पहला खला पर मबनी भारतीय सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश। Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. And Sun is our own star, our dearmost star, so understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Sri Kumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads what was conceived for this particular mission will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India, and provides some important aspects like the initiation of the coronal mass ejections, the speed at which it gets initiated, and some wave bands which are very important for the Earth ionospheric connections like near ultraviolet band, and the high energy particles, which is high energy radiations as well as particles which is coming from the solar flares and coronal mass ejections. So these are the informations which would be available from this particular mission. First of all, let me tell you that Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board. And multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now when the sun becomes angry, there are 2 types of process which happens. One is solar flares, that means electromagnetic radiation which reaches the earth in 8 minutes. But along with that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the earth. What we are looking for from the Aditya L1 mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they comes to the earth. We have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words used in it, it is visible because it is seeing the sun and the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what is a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7 through using this mission. और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने हिंदुस्तानी साइंसदानों को आदित्य L1 मिशन के कामयाब आगाज पर अपनी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस लॉन्च को तारीखी करार देते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि भारत चांद पर कामयाबी के साथ दाखिल होने के बाद सूरज को भी अपनी गिरफ्त में लेने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के बारे में पूछे जाने पर रविंद्र रैना ने दावा किया कि बीजेपी आने वाले तमाम इंतखाबात में जीत हासिल करेगी क्योंकि वो गरीबों का ख्याल रखती है और उसने पसमानदा लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काफी काम किए हैं। रविंद्र रैना मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना। रैना साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आज आदित्य L1 का सफल परीक्षण हुआ जिसमें हम अब सूरज को फतह करने जा रहे हैं। कैसे कहेंगे साइंटिस्ट को, क्या मुबारकबाद? मैं
भारतीय स्पेस रिसर्च जो एजेंसी है इसरो, मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, इसरो को बधाई दूंगा कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद हमारा अभियान अब आदित्य, जो कि एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब सूर्य होता है, सूर्य की ओर निकल पड़ा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के बढ़ते हुए कदम, भारत की विश्व में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती हुई ताकत को दर्शाता है। हमें उम्मीद है जैसे चंद्रयान 3 की कामयाबी हमें प्राप्त हुई और इसी प्रकार आदित्य की भी कामयाबी होगी। पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स की स्टडीज में भारत सबसे आगे रहेगा, हमें विश्वास है। इंडिया ब्लॉक जो है, कल उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी में उमर अब्दुल्ला और महबूबा को, और वो कह रहे हैं कि हम अलायंस में यहाँ करेंगे। आपको नहीं लगा अगर वो अलायंस करते हैं लोकसभा के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, आपको खतरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम है। हमने गरीबों का भला किया, हमने गरीबों की खिदमत की, हमने गरीबों, ज़ईफ़ों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का सहारा बन के बीजेपी ने काम किया। हम गरीबों, मस्कीनों और ज़ईफ़ों के हमदर्द हैं। हमें आवाम चाहिए, हमें पार्टियां नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन है गरीब गस थाउन खुश, गरीबस गस करुन खिदमत। हम गरीबों के खिदमतदार। अगर वो अलायंस करते हैं आपको प्रॉब्लम? हमें आवाम की फिक्र है, हमें पार्टियों की फिक्र नहीं है। हमें आवाम की खुशहाली चाहिए, हमें गरीब की मदद करनी चाहिए। गरीब को छत चाहिए, गरीब को घर चाहिए, रोजी चाहिए, अनाज चाहिए, गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली चाहिए। ये मोदी साहब दे रहा है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि इंजीनियर गुरमीत सिंह का मामला क्राइम ब्रांच को मुंतकिल कर दिया गया है। I said we are now proud of the fact that Jammu and Kashmir in its entirety is by and large moving towards terror-free region, and the next challenge for all of us, for the police and other stakeholders, would be to, with equal vigor, with equal strength, launch a drive against the terror that is just being generated by smuggling and drug abuse. So we have to now, from terror-free J&K to terror-free, drug-free J&K, we have to move in that direction jointly and strongly. Sir, what about Generalize it, incidents do take place. One incident took place wherein police took cognizance very, very quickly without wastage of time. We also took the community into confidence. We've been with them all through. Our sympathies are with them. That incident took place, an FIR was registered, demand was there, that case has been transferred to the crime branch now. Unfortunately, another incident has taken place in Tral that appears to be a bit dicey. I don't know what could be the possible reasons for the death of Sardar Karan Singh. But cognizance has been taken by police. We are proceeding with our investigation, and I'm sure we'll be able to find the factual position as to what happened, what could be the possible cause of death. But there's no reason to generalize this kind of incidents. It can happen anywhere, anytime. Down drastically, the numbers of terrorists who are active now is all-time low, and our effort is to take care of the remnant militancy wherever and whatever form it's available, it's present now. Numbers are, as I said, drastically down, and hopefully we'll be able to get rid of them fully. sir ahead of All required preparations in terms of security deployments and all would be made. As of now, I can't say as to what would be the schedule and all. That matter is under consideration with the authorities concerned. But whatever security requirements are there, that will be fulfilled. महकमा सयाहत एक बार फिर गोल्फ टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है और इसका खास एहतमाम प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया करेगा। ये टूर्नामेंट 4 अक्टूबर को बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल खिलाड़ियों और हिंदुस्तान के मशहूर गोल्फर्स के साथ शुरू होगा। इस हवाले से न्यूज़ 18 ने सेक्रेटरी महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर अमरजीत सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है।
हमारे साथ है स्पेशल सेक्रेटरी टूरिज्म अमरजीत सिंह, जिनसे हम बात करेंगे गोल्फ टूर्नामेंट के हवाले से जो अक्टूबर में शुरू हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो टूर्नामेंट है पिछली बार भी हुआ था, अब की बार भी हुआ, तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि इस बार दोबारा यहाँ पे हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे और इसका मकसद क्या है कराने का यहाँ पे? देखिए, PGTI गोल्फ टूर्नामेंट जो है ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम हमने सितंबर मंथ में PGTI गोल्फ टूर्नामेंट किया था, जो कि जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में पहला एक इंटरनेशनल इवेंट था, मेडन इंटरनेशनल इवेंट था। तो उसी का सेकंड एडिशन इस बार हम अक्टूबर मंथ में करने जा रहे हैं। PGTI जो है वो इंडिया का एक प्रोफेशनल गोल्फ बॉडी है, जो कि इंटरनेशनल गोल्फिंग फेडरेशन की मेंबर भी है। तो इस टूर्नामेंट के माध्यम से हमारे देखिए 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1, एक पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो गोल्फ टूरिज़्म है इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि टूरिज़्म में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ, और जम्मू कश्मीर जो ब्लेस्ड है, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर ने हमें हर तरह के टूरिज़्म प्रोडक्ट्स से नवाजा है। हमारे पास लेयर टूरिज़्म है, पिलग्रिम टूरिज़्म हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पे है, हमारे पास विंटर स्पोर्ट्स हैं, हमारे पास एडवेंचर टूरिज़्म का स्कोप है। उसके साथ साथ हमारे पास कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म और गोल्फ टूरिज़्म हमारा एक निश प्रोडक्ट्स है। जम्मू कश्मीर में पूरा एक गोल्फिंग सर्किट है। हमारे पास 5 गोल्फ कोर्सेज हैं, जो कि पूरे भारत में उस तरह के आपको गोल्फ कोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो बेस्ट गोल्फ कोर्सेज सभी इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गोल्फ कोर्सेज हैं। तो जम्मू तवी गोल्फ कोर्स जो कि 2015 में एक पूरा 18 होल गोल्फ कोर्स बना, और विद इन ए स्पैन ऑफ लेस दैन 10 ईयर्स यहाँ पे हम ये सेकंड इंटरनेशनल इवेंट करवाने जा रहे हैं। देखिए, एक तो इससे जो गोल्फ टूरिज़्म को हम प्रमोट करने जा रहे हैं, और जैसे कि गोल्फ टूरिज़्म जो है ये बढ़ावा देता है कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म को भी। जो डेस्टिनेशंस जहाँ पे गोल्फ फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ जो हैं दो कॉरपोरेट्स हैं, दे वांट टू ऑर्गेनाइज देयर कॉन्फ्रेंसेस आल्सो। तो लास्ट टाइम भी यहाँ 2-3 जो कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ गोल्फ इवेंट्स हुए, तो उसको एक बढ़ावा देने का मकसद है। और दूसरा, एक डेस्टिनेशन प्रमोशन जो है वो हमारा मेन मकसद है कि लोगों को बताया जाए कि जम्मू सिटी के अंदर ही, देखिए जो गोल्फ कोर्स है ये विद इन द सिटी भी है और आउटसाइड द सिटी भी है। आप सिटी हर्ट्स जो है, सिटी सेंटर से यहाँ पहुँचने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं, और जब आप यहाँ अंदर आते हैं तो आपको लगता है कि ये हम कोई एक अलग दुनिया में हैं। तो एक डेस्टिनेशन प्रमोशन हमारा एक इसमें मेन मकसद है कि एक जो ये जितने भी लोग यहाँ आएंगे पूरे भारत से और इंटरनेशनल दूसरी कंट्री से, लास्ट ईयर भी किया था और उस पर बड़ी अच्छी स्टोरीज़ आपके मीडिया के भाइयों ने उस पर चलाई भी थी, बड़ी प्रमोशन उससे हमें मिली थी। तो पर्पज़ है कि हम अपने सारे टूरिज़्म प्रोडक्ट्स शोकेस करें इस इवेंट के ज़रिए। ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टेट में टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करने का, क्योंकि आपको पता है कि G20 की टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग एक श्रीनगर में हुई है उससे बड़ा बूस्ट मिला है, टूरिज़्म को एक नई दिशा मिली है जम्मू कश्मीर में। और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, विदेशी पर्यटक हैं, उनकी संख्या पिछले साल से 300% से ज़्यादा बढ़ी है। तो हम इसी को फोकस करते हुए इस नंबर को इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर फर्दर इसमें इंक्रीज़ होगी और जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म बड़े पैमाने पे ग्रो करेगा और ओवरऑल यूटी की जो इकानमी है उसको इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। यानी जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म ग्रो करेगा, यूटी की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, बाहर के जब टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और ख़ासकर इस टूर्नामेंट का जो इनेकाद यहाँ पे किया जा रहा है उस हवाले से अगर बात करेंगे तो टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिकोनी, विजिटिंग जम्मू। और खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो आंखें हैं ये मानी जाती है बहुत सेंसिटिव पार्ट है। जो भी भगवान ने बनाया है इस सृष्टि में, उसको देखना और उसको महसूस करने में आंखों का सबसे बड़ा रोल है। जो नर्व्स होती हैं उसकी, वो कमजोर कैसे हो जाती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कारण हमारी नजर या नसें, नर्व्स के कमजोर होने का है डायबिटीज। एज के साथ आई साइट भी बहुत कमजोर हो जाती है। वर्किंग एज में हम सबको नजदीक का चश्मा लगता है। सर, ये हर किसी को लगना ही लगना है। आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या क्या मेथड्स अपनाने पड़ेंगे? आपकी अपनी अवेयरनेस कि हमें जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसी से आप अपनी नजर बचा सकते हैं। मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर JP सिंह के साथ देखिए सेहत आपकी, रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। CPS नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी CPS समन सर्विस माने जाएंगे।
छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। सीबीआई पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। जलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया और अब ये मार्ग बहाल कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के साथ द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपदा के समय हिमाचल की सहायता करने के लिए आभार जताया। भांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक, कल दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर चुकी है समिति। विदेशों की नीति का भी अध्ययन करेगी समिति। कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने नूरपुर के ढसोली गांव में 76 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हर घर को नल से जल और खेत तक पानी पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में शोभला साथी ट्रस्ट ने आपदा प्रभावित 200 और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन रेलवे स्टेशन जम्मू ने आज अपने दफ्तर के चेंबर में मीडिया से खिताब किया। यूनियन के सदर देवेंद्र चौधरी ने इस मौके पर कहा कि उन्हें जम्मू के अवाम की खिदमत करे हुए 52 साल हो चुके हैं, जबकि पठानकोट से रेल ऑपरेशन शुरू हुआ करती थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ई टेंडरिंग के जरिए ठेका किसी और शख्स को दिया गया है और हमें इसकी इत्तला नहीं दी गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि यूनियन इस बोली के बराबर रकम अदा करने के लिए तैयार है जो अलॉट की गई है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी खोना नहीं चाहते और हजारों खानदान इसी कमाई पर इन्हिसार कर रहे हैं और अब वो इस जगह को तब्दील नहीं कर सकते। रेलवे ने एक टेंडर निकाल के कोई ई टेंडरिंग की, जिसमें उस टेंडर में इन्होंने किसी को, हमको नहीं पता कब ये टेंडर निकला, हमको नहीं पता कौन इसमें किसने इसमें शिरकत की, लेकिन वो टेंडर किसी को दे दिया गया 1 करोड़ और 3 लाख रुपए, जबकि 80 लाख से ऊपर का रुपया जो है हम भी दे रहे थे। हमने रेलवे अगर हमारे से ये बात करते हैं कि हमको रेल का जो है किराया कम आ रहा है हम लोगों का, आप लोगों का, तो कुछ % बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी एग्री थे। किसी भी कीमत पर अपनी रोजी रोटी, अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी को रेलवे या ठेकेदार के अगर खिलवाड़ करता है तो हम नहीं होने देंगे। रेलवे को पैसा चाहिए, 1 करोड़ 3 लाख चाहिए, हम 1 करोड़ 5 लाख देंगे। सब डिवीजन गोल के इलाके बंदाचिन में महकमा जल शक्ति के खिलाफ मकामी लोगों ने जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जहां एक तरफ सरकार और इंतजामिया इस बात के दावे करती हैं कि हर घर तक नल और जल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर महकमा जल शक्ति की शक्ति गायब है। पीने के साफ पानी का हुसूल एक ख्वाब बनकर रह गया है। दहाइयों कबल इलाके में पानी की सप्लाई की बहाली को यकीनी बनाने के लिए पाइप बिछाई तो गई थी, लेकिन अब दहाइयां गुजर जाने के बावजूद इन बिछाई गई पाइप जंग आलूद होकर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। लेकिन इन पाइपों में जल सप्लाई करने से महकमा जल शक्ति मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है। महकमा जल शक्ति गोल के मुलाजमीन और आला अफसरान की गैर संजीदगी और लापरवाही की वजह से सैकड़ों घराने पीने के साफ पानी की दस्तयाबी से शदीद परेशानियों से दुचार है। मकामी आबादी नदी नालों से जहर आलूद पानी पीने के लिए मजबूर है। लोगों ने इंतजामिया बिलखुसूस SDM गोल से मुतालबा किया कि वो महकमा मुताल्लिका की कारकर्दगी का जायजा लें, ताकि महकमा जल शक्ति की हकीकी शक्ति बेदार हो और आवाम को पीने का साफ पानी फराहम हो सके। तो हमको आता नहीं है, यहाँ PHE वाले हमने कभी देखे नहीं। होज जो हो सूखे पड़े हैं, उनमें तो पत्थर हैं, जाल बसी है, उनमें पानी जो नाल में ये लगाए हैं, पाइपें लगाई हैं, सूखी हैं। देखने के लिए पाइप हैं लेकिन पानी तो उनमें है नहीं। गंदा पानी है, वो उसमें डालकर लोग पीते नहीं हैं, तो हम जाकर चश्मे से पानी लाते हैं। तो लेकिन ये है कि PHE वाले कभी हमने देखे नहीं, किसकी ड्यूटी है, कहाँ नहीं। अब होज बनाया तो पानी के लिए बनाया था कि पब्लिक को सहूलियत होगी, पब्लिक होजों से पानी पिएगी, पानी जाएगा। तो जब वो अब डाई लगा कर उनको बहाना पड़ेगा होजों को भी, तो वहाँ ऐसे सूखे पड़े हैं, पानी तो उनमें है नहीं। तो हमारे घरों में भी पानी कब आया था, हमने देखा भी नहीं, कभी लाइन में नहीं देखा तो पानी कब देखना था।
हिंदुस्तानी फौज की 40 राष्ट्रीय राइफल्स जो कि मुल्क की हिफाजत के काम के साथ साथ ऑपरेशन सद्भावना के तहत खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही है। पूंछ जिले की तहसील मंडी के गांव गगडिया में डूरू गांव के खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें इलाके की 35 खवातीन के पहले बैच को कपड़ों की कटिंग और सिलाई की तरबियत दी जाएगी ताकि ये खवातीन मुस्तकबिल में अपना रोजगार खुद कमा सकें और अपनी माशी हालत को भी बेहतर कर सकें। बोला है यहाँ पे कटिंग और टेलरिंग का, तो यहाँ पे 30 से 25 का बैच चलेगा बच्चों का। 1 महीना या 2 महीने तक हम ये सेंटर चलाएंगे। तो यहाँ का यही मोटिव है, यहाँ के बच्चों को कोई सेंटर मिलता नहीं है, यहाँ की लड़कियों को आगे बढ़ावा देने के लिए हमने ये सेंटर खोला हुआ है। तो हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रमंद हैं जिन्होंने हमें ये सेंटर दिया, यहाँ पे बच्चों को ये मौका दिया यहाँ सीखने के लिए। नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए इंतजामिया और समाजी तंजीमों की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। समाजी कारकुन सैयद अली असगर रिजवी ने बडगाम पुलिस के बाहमी इश्तराक से रन दी टॉक के नाम से एक खास दौड़ का एहतमाम किया। SDPO मागाम ने इस रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रन में सैकड़ों लोगों ने, बिलखुसूस नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रन रिजवी स्टॉप मागाम से शुरू हुई और कन्हामा में इख्ताम पजीर हुई। रन के इख्ताम के बाद कन्हामा के कॉमन फैसिलिटी सेंटर में खास तकरीब का इनेकाद किया गया। रन में कामयाब नौजवानों में अवार्ड तकसीम किए गए, इनकी हिम्मत हौसला अफजाई की गई। मुंतजमीन ने माशरे को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर एक को आगे आने पर भी यहाँ जोर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज रवि स्टाफ की तरफ से उनको एक इवेंट हो रहा था, मैंने आज फर्स्ट पोजीशन हासिल की, बहुत अच्छा लगा। आज क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? बस स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना कि आजकल लोग ज़्यादा ड्रग की तरफ जा रहे हैं। हमारी मैसेज यही है, इस ड्रग को अवॉइड करें, अपनी सोसाइटी में नाम कमाएं। इस रेस को ऑर्गेनाइज करने का हमारा एक ही मकसद था, वो ये है कि हम सोसाइटी को एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस ड्रग से दूर रहे। जो हमारी सोसाइटी में आजकल ये नासूर फैल रहा है, जिससे हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, उससे जितना हो सके अपने आप को दूर रखे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें खुद को। और हमारे साथ, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे साथ आज इस इवेंट में जो है 60 साल के बुज़ुर्ग भी हमारे साथ दौड़ रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शाबाशी देता हूँ कि वो हमारे साथ पूरे इवेंट में खड़े रहे, जो कि पूरे एंड तक उन्होंने ये रेस जो है कंप्लीट की। और उनकी तरफ से ये यूथ को, जो हमारे जवान हैं, छोटे लड़के हैं, उनको मैसेज जाता है कि जब एक बुज़ुर्ग ऐसा कर सकता है, अभी 60 साल की उम्र में इतने फिट रह सकते हैं, अगर वो इन नासूर चीज़ों से, इन ड्रग्स से दूर रहे और ख़ुद को स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व करें, तो उनकी लाइफ भी बेहतर हो सकती है, सोसाइटी भी बेहतर हो सकती है। तो उन सब के लिए यही मेरा एक मैसेज है कि वो सब जो है ड्रग से दूर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व करें खुद। बिल्कुल, रिटायरमेंट के बाद भी फिर वही जोश, जज्बा, वही स्पोर्ट्स का शौक़ फिर जाग उठा है और मैं लग रहा हूँ कि अभी जवान हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से। दरस का रज़वी साहब का, अली रज़ा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इवेंट किया दौड़ का, मागाम से कान्यामा तक, तो मैं भी इसमें शरीक हुआ। मुझे लग रहा है कि आज फिर वो जवानी याद आई, फिर वो बचपना याद आया जब मैं 46 ईयर्स पहले, 46 साल पहले 8th क्लास में पढ़ रहा था और उस दौड़ में शिरकत कर रहा था जो मागाम से आरी पहदन तक इवेंट हुआ था। जो भी जवान जिस मंशियात में या दूसरे बुरे रसूम में फंसे हैं या उनकी रगबत वहाँ की तरफ है, उनको स्पोर्ट्स की तरफ वापस आना चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में अपने मन लगाना चाहिए, तो वो बिल्कुल उन तमाम बुराइयों से दूर रहेंगे, स्पोर्ट्स के साथ वाबस्ता। मंशियात की बढ़ती हुई लानत पर कार्रवाई करते हुए मेंढर के तहसीलदार राहुल बिसोत्रा ने आज जिला सतह के NCORD मीटिंग की सदारत की ताकि मंशियात की बढ़ती हुई लानत से निपटने के लिए हिकमत अमली वज़ह दी जा सके। तहसीलदार ने मेंढर सब डिवीजन में मंशियात के खात्मे की सूरत हाल का भी जायजा लिया। मेंढर सब डिवीजन में मंशियात के इस्तेमाल और मंशियात के कारोबार को रोकने के लिए कई इक़दाम उठाए गए हैं, जिनका जायजा भी उन्होंने लिया। की जो हमारी मीटिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रेगुलर होती है, क्योंकि आपको पता है कि समाज में ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, ये हेरोइन है या और जो मेडिकल जो मेडिसिन हैं जिनका कि अब्यूज़ किया जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि इस चीज़ को पूरी तरीके से कर्ब किया जाए। तो उसी कड़ी में जो है हमें भी ये डायरेक्शंस हैं कि हम अपने तहसील लेवल पे भी जो है इनकॉर्ड की मीटिंग करें, और उसी लिए आज हमने यहाँ पे मीटिंग की थी, जिसमें हमारे पुलिस के SHO साहब थे और एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कॉलेजेस से प्रिंसिपल्स वगैरह आए हुए थे। और हमारे इसमें हमने आज जो एक हमारी विलेज लेवल और अपना मोहल्ला लेवल जो अपना एक कमेटी बनाई हुई है इसके लिए इनकॉर्ड्स की जो के तहत हमने उसमें हमारे जो टीचर्स हैं उनको हमने जो रखा है, कोऑर्डिनेटर रखा है। तो हमने वो टीचर्स भी सभी जो थे आज बुलाए हुए थे ताकि उनको भी सेंसिटाइज किया जा सके और जो है एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सभी की मतलब एफर्ट्स को मिला के कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा सके कि हम ये जो ड्रग अब्यूज़ की जो प्रॉब्लम है समाज में या इसका चलन है, इसके खिलाफ एक कंक्रीट एक्शन जो है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।